Hello and welcome to Debina Decodes. It's a very different episode. It's a very special episode because it took me 2 years, lots of guts, and lots of time and patience to reach to this day to shoot this video. And I will tell you why. I think you would know it already from the title of the video. I am answering all your questions, but I will not answer. The answer would be given by my alter ego. I mean the person who lives within of me. This person who people say a celebrity, an actress. Being an actress, I always had a different way of dealing with situations. कभी मैंने बहुत सारी चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल किया. But after 2 years of Debina Decodes, मुझे ऐसा लगता है it's a different kind of give and take kind of a relationship. यहाँ पे एक्ट्रेस बन के चुप करके बैठना is not the right thing. So I will answer, but this Debina cannot answer. So today, for the first time, I'm calling Debbie. मैंने नाम दिया. Okay, so Debbie. Let me call Debbie. Debbie? Yes. इसे बोलते हैं जुड़वा. आ जाओ. I told you that today you have to sit and talk. Nee, I'm feeling shy and nervous. No, please. That's exactly what was happening all throughout. She is nervous, and today both of us will answer your questions. How we handle your questions, जिसको कभी कभी हम बोलते हैं troll वगैरह, but don't worry, I will help you. So please come and sit. Okay. So Debbie, welcome to Debina Decodes, and don't worry, I will help you because I have learned for the last 20 years how to answer questions, how to tackle lots of questions. So don't worry, wherever मुझे ऐसा लगेगा कि you are faltering, I will answer. Okay, done? So let's get started. I have all the questions with me. The first thing is, how do we handle troll? Are you ready for the answer? I am ready. So जैसे तुमने मुझे इंट्रोड्यूस किया, I'm your alter ego. So जिस तरीके से तुम हैंडल करती हो सिचुएशन, उस तरीके से मैं आज दिखावे के लिए भी हैंडल नहीं करूँगी. मेरा वही एक्सप्रेशन होगा जो एक्चुअली मुझ में होता है, जो तुम्हारे अंदर होता है, जो तुम दिखाती नहीं हो. सो आई विल बी ऑनेस्ट टुडे. एक एक्ट्रेस होने के नाते आई वॉज ऑलवेज अंडर दिस ओपिनियन कि वी हैव टू मेंटेन अ सर्टन काइंड ऑफ डिग्निटी. सो इसीलिए मैंने हमेशा एक डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन किया, और शायद इसी को बोलते डिग्निफाइड साइलेंस, जब आप किसी चीज़ का जवाब नहीं दो. बट समहाउ मैंने हमेशा सोचा कि जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो, आप अपना काम करो. और जो लोग बोलते हैं, जो ट्रोल बोलते हैं, उसमें जो गुस्सा आता है उसको चैनलाइज करो टू मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन, टू ओन योर क्राफ्ट. कुछ ना कुछ काम में बिजी रहो. तो मुझे लगता है वही कर कर के आई हैव ग्रोन टू व्हाट आई एम टुडे. और ट्रोल को कैसे मैं जवाब देती हूँ, इसके तो बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, तो वो सब डिविजन में हम लोग धीरे धीरे आएंगे. बट डू यू हैव समथिंग टू से? It hurts and how I can't even explain. Yes, I still remember the day when Gurmeet first started acting for Geet, और जब he was doing very well, जब एकदम से his character became so popular, the show became so popular, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए था. वाओ, मैं इतनी ट्रोल्ड हुई थी. ओ माई गॉड, आई कांट इवन एक्सप्लेन. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल ही हो जाऊंगी. मुझे मतलब, एंड आई नो दैट इफ़ आई लूज़ माई माइंड, इफ़ आई फील बैड, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर आप
को कोई हर्ट करे, दैट यू आर नॉट लुकिंग गुड विथ हिम, यू लुक वेरी बैड विथ हिम, यू लुक अगली, और आप मर जाओ, आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए, आप पता नहीं आप उसके को पे जादू टोना करके आप उसके साथ हो, ये सारी बातें सुन के किसको अच्छा लग सकता है. सो दैट टाइम I mean I could not enjoy that whole phase because I was so trolled. I was so trolled. So I cannot forget that. In fact, मुझे ये भी पता है that I think for you I would say that you knew that अगर if you show that you are hurt, आप बहुत दुखी हो, तो at the end of the day गुरमीत भी बहुत दुखी होगा because it is not his fault, right? So इसीलिए you were putting up a great face, but I know what I was going through. I was completely shattered. I am the one जिसे actually ये सारी चीज़ें affect करता है, जिसे ये सारी चीज़ें touch करता है. So like hats off to you. Well, of course you can read my mind very well. Actually hurtful things don't touch me. So मैंने ये अपना एक शेल बना के रखा है जिसमें I feel that anything that is hurting me beyond a point does not touch me. तो मुझे लगता है कि that's the best way how I can handle such situations. नहीं तो you would know how I would feel, right? Coming to the second question, ये एक्चुअली ट्रोल नहीं है, बट हद से ज़्यादा जब एक क्वेश्चन हो जाता है तब उसका जवाब देना ज़रूरी होता है. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई डू यू स्पीक इन इंग्लिश अ लॉट. तो इसका जवाब शायद मैं ऐसे दूंगी, it's okay, that's a language I know, and that's a language that so many people, not only from my country, even my country has diversified culture. यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मराठी बोलते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बोलते हैं, देयर सो मेनी अदर लैंग्वेजेस, पंजाबी बोलते हैं. सारी लैंग्वेजेस तो मैं जानती नहीं हूँ, बट वन लैंग्वेज दैट you know from Kashmir to Kanyakumari all the people would know is English. Even एक्ट्रेस होने के नाते इंडिया के बाहर भी कुछ लोग हैं, राइट, जो हमें फॉलो करते हैं. तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि इंग्लिश में बात करूँ ताकि सब लोग जाने, सब लोग समझ पाए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ और मेरे वीडियो के कंटेंट समझ पाए. बट शी हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग इट. जस्ट लेट्स लिसन टू हर. तो तुमने तो कह दिया कि तुमको असर नहीं करता, लेकिन मुझे असर करता है. तो जब लोग चाहते हैं, हमारे देश की जनता जब चाहती है कि मैं उनकी मातृभाषा में बात करूं, तब से मैंने हिंदी में बात करना स्टार्ट कर दिया. मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे इफ़ेक्ट नहीं करता, नहीं, बिल्कुल मुझे करता है. तभी तो मतलब आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में मैं इंग्लिश में बात करती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझ पाए हर एक बात, तो मैं हिंदी में बात करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि सबटाइटल्स डालूँ. एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो समझने के लिए ही सही अगर आप कोशिश करेंगे, तो कितने लोग हिंदी सीख जा रहे हैं, तो कितने लोग मेरे वीडियो के लिए, थोड़ा बहुत मैं बंगाली बोलती हूँ तो बंगाली सीख गए. तो मेरे वीडियो के लिए ही सही आप अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश फॉलो करेंगे तो और एक लैंग्वेज सीख जाएंगे. सो या इट हर एक चीज़ का अच्छाई और बुराई होता है. इट अफेक्ट्स मी, इसीलिए मैंने लैंग्वेज चेंज किया. बट ठीक है, कभी कभी जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल होता है उस वीडियो के लिए हम उसी लैंग्वेज को लेते हैं. सो या लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू लिटिल मोर क्रूडर वंस. व्हाई डू यू कॉल योर इन-लॉज uncle auntie? Oh my god. And the way I would answer to this is, it's okay, I want to call them uncle auntie. Gurmeet wants to call my parents uncle auntie. We are fine with it. हमें अच्छा लगता है.
और इसी तरीके से मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे से करीब फील करते हैं। मतलब किसी ने नाम चेंज कर लिया आपके दोस्त ने, पर मैं मेरे दोस्त को उसी नाम से बुलाती हूँ जिस नाम से मैं 10 साल से बुलाती थी। सो दैट्स हाउ इट इज़, यू नो, एज सिंपल एज दैट। आई डोंट, it's just my way of doing it, and I feel I'm not answerable, but I think she wants to answer, so yeah, let's. ये रिश्तों की बात है, और जब वो रिश्ता समझने लग जाता है, मुझे पता है कि आपने बहुत बार बात की, और बात की मतलब अपने इन-लॉज़ से, और गुरमीत ने भी आपके मम्मी पापा से बात की, और सबको जब पसंद है तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी और को कुछ बोलने की ज़रूरत है। हाँ, ये है कि बार बार एक सवाल जब पूछते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब आपसे ज़्यादा लोगों को ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। मेरे हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है दूसरों के बातों पे दखल अंदाज़ी करके उसकी ज़िंदगी को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देने की मुझे नहीं लगता है कि किसी को ज़रूरत है। और जिस तरीके से है अलग है ना, और सबसे अलग चीज़, सबसे अनोखी चीज़ स्पेशल होती है, तो मुझे तो क्यूट लगता है। I hope that satisfies you good enough now. So this question was asked very recently, एक वीडियो जहाँ पे मैंने भाई फोटा या भाई दूज का जो वीडियो बनाया, और एक्चुअली सिमिलर क्वेश्चंस बहुत बार लोगों ने लिखा है दैट वाई गुरमीत डज नॉट स्टे विथ हिज पेरेंट्स। और इसमें लिखा कि अच्छा आपके भाई अलग रहते हैं और गुरमीत भी उसके मम्मी पापा से अलग रहते हैं। So my answer is yeah, so that's it. I mean the actor जो जवाब नहीं देना चाहते हैं, जो just feels silence is the best recipe, I say yes, that is how it is. जो आप देखते हैं वही सही है, but yeah, she is gonna answer, and I think that is why I got her here today. यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सवाल सबसे ज़्यादा औरतें पूछती है, और हमारे सोसाइटी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसको कहीं ना कहीं यू नो बरकरार रखने वाली हम औरतें ही हैं। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है जब एक औरत बहुत अपने सास के द्वारा पीड़ित होती है तो वो अपने बहू को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। तो प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो खुद इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, हु कैन नॉट लिव विद देयर पेरेंट्स, हु मतलब जिनकी एकदम बचपन से फंक्शनिंग होती है, यू नो शादी के बाद आपको अपने माँ बाप से दूर रहना ही है, वो उन्हीं लोगों से ये क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा बाहर आता है कि क्यों नहीं आप रहते हो, क्यों आप अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहते हो। मेरे हिसाब से अगर हमारी फैमिली इस तरीके से खुश है और इस तरीके से एक फ़्लो में जा रहा है, एक्चुअली लोगों को ये नहीं पता, लोगों को ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब मैंने मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे ऐशो इशरत की ज़िंदगी दिलाने के लिए रखा है, तो मैं यहाँ पे इनके लिए मैं आज आई हूँ ये बोलने के लिए कि ऐसा भी दिन गया है जहाँ पे मेरे घर में मेरे चाचा के बेटे की शादी थी और मेरी मम्मी जा नहीं पाई क्योंकि मैं शूटिंग के लिए आउट ऑफ स्टेशन थी। तो मम्मी को रहना था घर में क्योंकि मेरे घर में एक पेट था डेक्स्टर, और मेरा हस्बैंड है वो भी घर पे है। तो मतलब मेरे घर को देखभाल करने के लिए मेरे बियॉन्ड, मतलब मेरे गैर मौजूदगी में किसी को होना चाहिए, वो मेरी मम्मी थी। और बिकॉज शी इज़ अ वर्किंग वुमन, तो इसीलिए घर को सही तरीके से यू नो देखभाल करने के लिए एक और किसी को होना ज़रूरी था। एंड दैट्स व्हेन माय मॉम हैज़ sacrificed a lot, you know, sacrificed a lot and been here. So मैं ये भी कहूँगी कि मेरे भाई अकेला रहता था कलकत्ता में पापा के साथ, जब मेरी मम्मी मेरे साथ यहाँ पे रहती थी, क्योंकि मुझे मम्मी की ज़रूरत थी। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ आंसर्स आवर क्वेश्चन। दैट्स वेरी इंटेंस एंड आई थिंक people will understand, and yeah, and I hope you understand.